Okay, I see everybody's coming live. Hello, everybody. This is Payal Datta. You're tuned into Spiritual Vibrations, and today is our Thursday live. I am here for some time, and you are allowed to ask me as many number of questions you want to, and I am here to answer all your queries. So if you have any queries regarding what I do, the knowledge which I have on that, if you have any queries, you can ask me straight on this platform, and I will be reliable to answer you. If you are not taking this particular program live, if you're not going through this particular program live right now, then I suggest you to put your questions in the comment box so that when I go through the comment later, I can answer your questions through reels. Okay, so I would be very happy if this particular session would be a very great conversational session. If not, then I'm absolutely fine with it. It's absolutely okay for me if you do not want to communicate and just listen to me. So today I have thought of a concept which I want to explain to you all. Okay, thank you so much for joining in. I see a lot of people joining in, like healers Pranik, and then Jitendra is joined, and spiritually Hi has joined in, and there are a lot of people who are joining in, like RFIK747. So there are many people who are joining. I welcome you all to join in. So I will start with my information which I wanted to give you today. And in the process, you keep asking me questions. If I feel it is relevant to answer then and there, I will, and neither I will answer all your question at the end of the program. Okay. So today when I was thinking कि I will speak in Hindi a little bit कि हम आज लाइव करेंगे, तो लाइव करने के लिए टॉपिक क्या होगा. सो मैंने सोचा आज अब आपको वो बताएंगे कि हीलिंग मोडालिटीज़ में कुछ ह्यूमैनिटेरियन हीलिंग मोडालिटीज़ होती हैं. सो हम पहली बात तो हीलिंग क्यों लेते हैं. वाई डू वी टेक हीलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. वेल, जनरली वी टेक हीलिंग व्हेन वी आर नॉट वेल, राइट. तो हमारे पास एक सेक्टर होता है जो कि डॉक्टर होता है. हम फिजिकली एक डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो. हम उसके पास जाते हैं, अपनी बीमारी का इलाज कराते हैं, and they help us with a physical illness. Okay, there are many medicines which also help us to have a mental cure. So yes, there are mental cure medicines as well. But apart from that, if you have a financial problem, they don't have a medicine for that. If you have a relationship problem, they don't have a medicine for that. If you have some problem with your home, that your home is not having that peace environment, then again there is no remedy for that. But then, because we are in such a world wherein healing is available everywhere, so there are many healing modalities which have mushroomed in the process of these many years of our existence. So जब से हमारी human जो existence पैदा हुई, लाइव हुई, तब से अब तक बहुत सारी healing modalities का भी डेवलपमेंट हुआ है. सो उसमें से एक पूरा सेक्ट होता है जो कि ह्यूमैनिटेरियन हीलिंग मोडालिटी के अंदर आता है, जहाँ पे व्हाट यू मीन बाय दैट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू राइट नाउ. कि जहाँ पे आपको परेशान नहीं किया जाता है, जहाँ पे आपको अपनी गलती का एहसास नहीं करना होता है. बस अब सारा सब कुछ आप हीलिंग के पर छोड़ देते हैं. जैसे कि अगर आपने करना शुरू किया या किसी से रेकी लिया, तो आप बोलेंगे कि मेरे हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, तो आप प्लीज़ उसे हीलिंग दे दीजिए. तो वो व्यक्ति आपको बोलेगा ओके फाइन, आई स्टार्ट सेंडिंग हीलिंग. और आप क्या उसका एंड रिजल्ट चाहते हैं वो आपसे थोड़ा पूछ लेंगे, थोड़ा सा आपको पूछेंगे कि उनका उनका ये हालात कैसे हुए थे, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और उसके हिसाब से वो पूरा एक ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर तैयार करेंगे अपने दिमाग में, और उस चीज़ को एनर्जाइज करना शुरू कर देंगे. सो अगर आप रेकी के बारे में पूछे, बिकॉज आई एम अ ग्रैंड रेकी मास्टर, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन ऑफ द symbols of it, which is Hansha Shonen, which is number 3 symbol. हम number 3 symbol के हिसाब से उसे इन्फॉर्म करते हैं. और उस सिंबल का इटसेल्फ मीनिंग ये है कि हम डिवाइन की एनर्जीज को कॉल करते हैं. हम उस डिवाइन की एनर्जीज को हमारे एंड रिजल्ट की ओर भेजने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू वो वहां पे जाए, इसकी हीलिंग कर रहे हैं. तो पहली बात तो हम एक बहुत ही सिंपल क्लेंजिंग का साइन लगाते हैं, उसके बाद हम बैलेंसिंग का साइन लगाते हैं, और उसके बाद हम ये पर्टिकुलर लास्ट नंबर 3
सिंबल को अप्लाई करके उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप मास्टर बन चुके हैं तो आपके पास और एक सिंबल आता है, नंबर 4 सिंबल। उस 4 सिंबल को जब आप करते हैं तो आपको डिवाइन एनर्जी का नॉन स्टॉप एनर्जी मिलने का प्रॉमिस आपको मिलता है। और जो मीडिएटर होता है, जैसे कि जो आपकी हीलिंग कर रहा है, जो हीलर आपकी हीलिंग कर रहा है, वो मीडिएटर बनता है, वो नॉन स्टॉप इन्वोक करता रहता है और एक रेगुलर टाइम पीरियड में आपको हीलिंग देता रहता है। इससे आपको 100% रिजल्ट्स आते ज़रूर हैं, लेकिन देर इज़ आई एम सो सॉरी, इससे आपको थोड़े बहुत रिजल्ट्स आते ज़रूर हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे आपको परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। आपको फील गुड फैक्टर में डेफिनेटली हायर एनर्जीज लेके आती है और इससे काफ़ी लोगों को असर भी होता है, बट सब लोगों को नहीं होता है। हमेशा यही पाया गया है कि किसी किसी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, किसी किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं आता। अब ह्यूमैनिटेरियन मोडालिटीज़ में कौन कौन सी मोडालिटीज़, जैसे प्राणिक हीलिंग, वो भी ऐसा है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है तो वो आपके बॉडी के एनर्जी से स्कूप आउट कर ली जाएगी और फिर उससे साफ किया जाएगा। मतलब स्कूप आउट मतलब वो आपकी एनर्जी से वो पूरी तरह से साफ कर ली जाएगी, फिर एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भरी जाएगी, जो डिवाइन की ही एनर्जी होती है। और आप एक मीडिएटर है, अगर आप प्राणी किलर तो आप मीडिएटर बनते हैं और वो एनर्जी आप अपने क्लाइंट के अंदर देते हैं। और अगर क्लाइंट इटसेल्फ, अगर मैं खुद अपनी हीलिंग कर रही हूँ तो मैं डायरेक्टली अपनी क्लेंजिंग करके अपने को ही एनर्जाइज करती हूँ। ये पॉसिबल, सेल्फ हीलिंग इज ऑलवेज पॉसिबल एंड सेल्फ हीलिंग इज द बेस्ट हीलिंग ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी। सो ये इस तरह की मोडालिटीज में कोई ये नहीं पूछता कि आप ऐसा क्यों सफर कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने प्रॉब्लम से बाहर आने का एक रिक्वायरमेंट रहता है, और उस मोमेंट में अगर आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए, आप जनरली उस हीलिंग मोडालिटी को सपोर्ट करने लगते हैं मेंटली। अगर उसने आपको 3 4 5 रिजल्ट्स दे दिए, अगर उसने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दे दिए, तो फिर वो आपको फ्यूचर में कोई इशू नहीं होता। आप आराम से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि नहीं नहीं, ये हीलिंग मोडालिटी इज समथिंग विच इज वर्किंग फॉर मी। तो धीरे धीरे आपको बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें दिखने लगती है कि ये मैं जहाँ जहाँ हीलिंग करता हूँ मेरे लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं। लेकिन जब हम ये ह्यूमैनिटेरियन मोडालिटीज़ फॉलो करते हैं, जो कि आप अगर मॉडर्न मोडालिटी कॉन्सेप्ट्स अगर देखें तो एनएलपी है, even hypnosis, but hypnosis is pretty good modality, but it is also a humanitarian modality. But past life, उसमें जो पास्ट है उसका जो एक्सटेंशन हैंड है, past life, it is not a humanitarian modality. Hypnosis is very much a humanitarian modality. NLP is also a very good humanitarian modality. वहाँ पे हम हमेशा एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं और उसमें ड्वेल करने की कोशिश करते हैं, सारा टाइम पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। सो ये एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग वन सेल्फ है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सेक्टर में, या मतलब ह्यूमैनिटेरियन हीलिंग मोडालिटीज़ में कौन कौन सी आएंगी, लामा फेरा आ जाता है, प्राणिक हीलिंग आता है, रेकी आता है, एनएलपी आता है, हिप्नोसिस आता है, आप चाहो तो कलर थेरेपी आ जाता है, एंजल थेरेपी आता है, टैरो कार्ड आता है, और टैरो कार्ड भी नहीं आता है, टैरो कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट समथिंग डार्क। बट जो भी चीज़ें जहाँ पे भी आप जाते हैं और आपको अपने आप को देखने के लिए नहीं बोला जाता है, अपने आप को चेंज करने के लिए नहीं बोला जाता है, वो सारी मोडालिटीज़ ही ह्यूमैनिटेरियन होती है कि आप बस फ्यूचर देखो, आगे बढ़ो, आगे निकलो। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि इसके रिजल्ट्स नहीं आते, ऑफकोर्स इसके रिजल्ट आते हैं, बट इसके रिजल्ट्स परमानेंट मैंने देखा हुआ है नहीं आते हैं। आई हैव बीन इनटू दीज हीलिंग मोडालिटीज फॉर quite a long time now. If I start counting on my fingers, it's almost been 17 years now that I am into healing modality. I started with I started with Reiki, and I ended with shamanism, and in between I learned a lot of modalities, and that's my passion. मेरे को मजा आता है नई नई healing modalities सीखने का, because I am trying to understand how these modalities work, and मेरा research work ही है वो. I research a lot on healing modalities. So अब मैं आपके पास आती हूँ कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन हीलिंग मोडालिटीज़ हैं जिस पे मैक्सिमम लोग डिपेंड करना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स,
बिकॉज जो रूट कॉज है उन्हें वहाँ तक नहीं पहुँचना है। जैसे कि प्राणिक हीलिंग में एक स्टेटमेंट है कि जो भी मेरे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का रूट कॉज है, जहाँ पे भी है, जहाँ से भी जुड़ा हुआ है, वहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल रही है और मैं निकाल रहा हूँ, एंड एवरीथिंग इज गेटिंग क्लेंस्ड एंड आई एम हील्ड एंड ऑल द नेगेटिव एलिमेंटल्स एंड एवरीथिंग इज क्लेंस्ड एंड ओनली द पॉजिटिव थिंग इज गोइंग टू कम एंड यू एनर्जाइज दैट एरिया एंड यू फील नाइस। लेकिन मैंने देखा है इतना कुछ करने के बाद भी मैंने पूरे कोरोना पीरियड में बहुत प्राणिक हीलिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन जिसे मरना था वो मर रहा था, जिसे बचना था वो बच रहा था। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं कर रही हूँ, बाद में मुझे समझ में आया कि जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। आई एम जस्ट डूइंग समथिंग इन बिटवीन। एंड ऑफ द डे व्यक्ति जिसकी हीलिंग हो रही है, ही इज द हीरो इन द स्टोरी एंड आई एम नो वन। मैं कुछ भी नहीं हूँ यहाँ पर। आई एम जस्ट लाइक एक मीडिएटर मुझे रख दिया गया है उसे एक एनर्जी देने के लिए, बट वो एनर्जी लेगा कि नहीं लेगा, वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सारा उस पर निर्भर करता है। मैंने देखा जो लोगों को मैंने 2 दिन एनर्जी दिया वो हील हो गए। मैंने जिनको महीने में एनर्जी दिया वो नहीं रहे। मैंने देखा कि जो लोग बहुत आशावादी थे कि वो जिंदा रहेंगे, उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो जानते थे, वो आखिरी दम तक जानते थे कि उन्हें जिंदा रहना है, वो बच गए। और जिनकी जो आस्था टूट रही थी वो उनकी उनकी डेथ हो गई। तो मुझे बहुत रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट अबाउट वो हु एम आई टू गिव देम अ हीलिंग, इट्स अबाउट द पर्सन हु इज टेकिंग द हीलिंग। जो हीलिंग ले रहा है पूरी कहानी ही उसकी है, बाकी यहाँ कोई दूसरा तीसरा है ही नहीं। एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज कि ह्यूमैनिटेरियन मोडालिटी विल नेवर गिव यू द रिजल्ट्स which you really want, and that's how I switched myself to these kind of modalities wherein we really dig into the root cause of your problem. आपके लाइफ में जो भी घट रहा है उसका रूट कॉज पे जाने का, उसके रूट कॉज पे जाके उसको देखना और उसको महसूस करना और वहीं के वहीं उस चीज को वहां पे हील करना, दैट इज व्हाट आई लाइक टू डू एंड आई हैव सीन ग्रेट रिजल्ट्स इन दैट, बिकॉज वी आर गोइंग टू शो यू हु यू आर। जब आप अपने आप को पूरी तरह से क्लियरली समझने लगते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, आप समझने लगते हैं ये बीमारी या ये रिलेशनशिप इशू या ये फाइनेंशियल इशू मुझे किस कारण से आ रहा है, व्हाई इट इज कमिंग इन माय लाइफ, that is the point you have to start stopping that habit which caused this particular incident in your life. उस हैबिट को बंद करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, ह्यूमैनिटेरियन मोडालिटी यूज करना चाहता हूँ, मैं सारा सब कुछ एनर्जी पे छोड़ दूंगा और मैं भगवान के ऊपर सब छोड़ दूंगा, लेट गॉड टेक प्लेस, टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल जस्ट प्रे, सो देन द रिजल्ट वुड बी ऑल्सो एग्जैक्टली वो भगवान भरोसे ही रिजल्ट आएगी, आपके भरोसे कोई रिजल्ट निकलेगी नहीं। एंड एंड ऑफ द डे there is a catch in even the modality which I am going to teach you, is that if you at the least know yourself, अगर आप अपने आप को at the least अच्छे तरह से जानते हैं, अच्छे तरह से आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबली समझते हैं कि मैं कैसा टाइप का पर्सनालिटी हूँ, मेरा थर्ड डिमेंशनल बीइंग कैसा है, हाउ इज माई 3D बीइंग, क्योंकि 3D बीइंग ही तो ये सारे एक्शंस ले रहा है, 3D बीइंग के साथ ही तो सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। आपके 3D लाइफ में जो आप 3D पर्सनालिटी हो, इसी के साथ तो सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी, ये जो 3D बीइंग के साथ जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है, इसको जब तक आप डिकोड नहीं करोगे तब तक कि आपको ये समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या करूं, किस पर्टिकुलर सिचुएशन पे मैं क्या रिएक्शन दूं, करूं तो मैं क्या करूं, जब तक कि आप इस पे क्लियरिटी पे नहीं आते, आप अपने आप को फोकस नहीं कर पाते, अपने आप को क्लियरिटी नहीं दे पाते, आप कभी अपना कोई बिहेवियर चेंज नहीं कर पाएंगे। आपके लाइफ में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नॉन स्टॉप रह जाएगा।
आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो हमेशा आपका हमेशा रिलेशनशिप प्रॉब्लम रह जाएगा. एंड याद रखिएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज द रेसिड्यू ऑफ योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम. अगर आपके लाइफ में आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होगा ना, आपका फाइनेंस भी कभी अच्छा नहीं चल सकता है. बिकॉज योर रिलेशनशिप is like your finance is direct related with your relationship. आपका relationship is the source of your finance. आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, वो वहीं पर ही रहता है. that is the beauty of interconnectedness. and दूसरी चीज, आपका पर्सनल लाइफ अगर हेल्दी नहीं है तो आपका आपके साथ का रिलेशनशिप भी बिल्कुल हेल्दी नहीं है. सो इट्स ऑल स्टार्ट्स विथ यू. अगर आपका खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं होता हुआ दिखाई देगा. जहां जहां आपका रिलेशनशिप आपके साथ अच्छा है, वहां वहां आपके रिलेशनशिप बाहर अच्छे होते हुए दिखाई देंगे. अगर आपका रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा है तो आप देखेंगे आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत इजीली आपके लाइफ में आती है. और अगर फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं आ रहे हैं तो प्लीज फोकस इन योर रिलेशनशिप. वेयर आर यू मिसिंग आउट? और आपको पता चलेगा that the key is there in the relationship with you and your mother. Finance success comes from the relationship of you and your mother. और ये इतना डीप टॉपिक है कि मैं ऑनलाइन इतनी इजीली इसको बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो उसके लिए आप में से किसी एक को अपनी मदर के साथ का अपना रिलेशनशिप थोड़ा बताना होगा. देन व्हेन आई क्रॉस काउंटर यू विथ योर माय क्वेश्चंस, आपको रियलाइज होने लगेगा ओके नहीं सही बात है, this is how my relationship with my mother is, and exactly this is how my relationship with my finances. और वहीं पे if you have a very poor or a very good relationship with your father, say suppose you have a very great relationship with your father, you will also realize that you are getting connected with your purpose of life very easily. लाइफ में आपको जो है कि सक्सेस बहुत आसानी से मिलता है, आपको आपके लाइफ का डायरेक्शन बहुत आसानी से मिलता है. मदर आपको ग्रोथ फाइनेंस देती है और आपको फाइनेंशियली डेवलप होने में मदद करती है, बट फादर आपको स्टेबल होने में मदद करता है, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी पर्सनालिटी में गहराई लेके आता है और लाइफ को लीड करने की दिशा प्रदान करता है. तो ये सारा है जो भी है कि इट्स ऑल द गेम ऑफ रिलेशनशिप. सो whatever you are the product of your relationship. Whatever you are the product of your internal being. So अगर आपका अंदर का व्यक्ति is wounded, the one who is inside you, if you don't have a good relationship with you, आप अपने आप से ही अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, आप जनरली देखेंगे आपके साथ लोग भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं. इसका मैंने हमेशा से कोट दिया है, जैसे आप अंदर से होते हैं वैसे ही लोग आपके साथ बाहर में होते हैं. So you don't have to run around, meet so many coaches, you don't have to run around, meet so many people, astrologers or vastu shastris or even palmist or even any great being who will come and tell you this is your problem. You know your problem better than anyone here. The only thing is you don't know yourself. That is the only biggest reason, because you're not conscious living within you. अपने अंदर रहते हुए आप कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं है. मैक्सिमम टाइम आप बेहोशी की जिंदगी निकाल रहे हैं, और जितने आप बेहोश होते हैं आप ये सवाल पूछते हैं, सारी जो सवाल है आपके वो आप बाहर पूछते चले जाते हैं, आपको एक का भी जवाब अंदर से नहीं मिलता है. रीजन इज यू आर हाईली अनकॉन्शियस. सो इफ यू वांट टू बिकम कॉन्शियस, if you want to understand how consciousness really helps you to connect with your higher self, with your inner being, and create a very harmonious relationship with your inner being, then knowing yourself, knowing your avatar, discovering your true self is a must step. That's the beginning of your becoming for future. That's a journey from ordinary to extraordinary.
So if you are a very ordinary person, you can become extraordinary if you know where you should start from. Thank you so much for being live. I didn't get too many questions this time. Only somebody named as Gaurav has asked me, today's discussion is on which topic, ma'am? So, well, I have, you can just go through the entire session. It was all about humanitarian modalities. I was talking about humanitarian modalities today. And a lot of people have joined me today live. So, but then there's not too much of an interaction today. So, I will sign off from here. However, once people who are watching me offline, I really request you to put forth your question. If you have any questions related to this today's topic or even any other topic, you can definitely put forth your questions in the comment box. I would love to answer you through reels and also through the lives, which I would keep coming on every Thursday between 2 to 3 or 3 to 4, depending upon my availability. I will always keep you informed about my upcoming live. And also, just would like to also inform you that as per the higher guidance, I want to serve people, and I don't want to serve like for example, through ad. मैंने इस बार इस फ्री वेबिनार के लिए कोई ऐड नहीं किया. ये वर्कशॉप, इसको मैंने किसी भी प्रकार का स्पॉन्सरशिप नहीं किया है. I just want to see a organic flow on this particular webinar. I want to see how you people respond to this organic, because this is going to be a service from my end, so I'm not going to go through any sponsorship for this free webinar. So please utilize this free webinar for your upgrade in your life. It's going to be just for 2 hours. It's an inner power free workshop provided from my end. It's more about a spiritual aspect of me, okay? Because in these many days, I personally have experienced a lot of growth um, in myself, and this growth has to be departed to all of you, and only those people will be able to make it uh, who are ready to receive it. So I just want to see who all are ready to receive this particular energy without creating a sponsorship on it. Because when I sponsor, then every Tom, Dick, and Harry comes in the flow, and then it becomes like not that spiritual kind of an environment. But I want a very spiritual environment. I want people who are really seekers, जिनको लाइफ में एक पीस चाहिए. पीस मीन्स पीस. ऐसा नहीं कि पैसा, ऐसा नहीं कि ग्रोथ. देखिए, आई टेल यू वन थिंग, इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी. मेरे मेरे ये जो कम्युनिटी का नाम ही है स्पिरिचुअल वाइब्रेशन. वाइब्रेशन, आप जिस तरह से वाइब्रेट करते हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरह से आपके तरफ वही वाइब्रेशन की चीज़ें आती हैं. तो अगर आप बहुत अच्छा वाइब्रेट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जो चीज़ें आपके पास आएगी ना, वो भी अच्छी ही होगी. Okay, so that would be money, that would be growth. And if you are happy, if you will live a happy life, if you don't live a cranky life, if you live a really happy life, I promise you, you will see money clinging around you. खनकते हैं आपके आसपास पैसे, क्योंकि आप खुश हैं. और आप कहते हैं बहुत दुखी होके, यार पैसे की बड़ी किल्लत है, तो वो तो किल्लत रह ही जाएगी, आखिरी तक रहेगी आपके लाइफ में. सो अपने आप को जानिए और अपने आप को खुश रखना जानिए. बिकॉज वंस यू आर हैप्पी, यू विल अट्रैक्ट ऑल पॉसिबल हाई वाइब्रेशनल पीपल, हाई वाइब्रेशनल प्रोडक्ट्स, हाई वाइब्रेशनल environment event into your life, and you will live a very healthy life as well. So happiness is the key. But हम happiness क्यों नहीं अचीव कर पाते? Because there are a lot of blockages, lot of bondages, lot of healing needs to be done. And once you heal yourself, once you clean yourself, healing का मतलब अपनी proper cleaning करना. जिस वक्त आपने अपने आप को अच्छे तरह से clean कर लिया है, you get your potential back. So ये process थोड़ा सा उल्टा चलता है मेरे साथ. मैंने रियलाइज जो किया है वही मैं इस इनर पावर वर्कशॉप में शेयर करने वाली हूँ. दैट लेटिंग गो
helps you to come back to your full potential, and how it helps, we're going to discuss it there. I'm going to share my experiences plus the techniques which you can follow and live a very happy and a healthy life. Thank you so much for joining in, everybody. Thank you very much and have a lovely day ahead. Bye bye.